દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર ભરૂચ નજીક આવેલ સાંપા ટોલ પ્લાઝા જનતાની ખિસ્સાકાતીનો વિસ્ફોટ। દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ 4 પર આવેલ સાંપા ટોલ પ્લાઝા છેલ્લા 1 વર્ષથી મુસાફરોને ખુલ્લેઆમ લૂંટી રહ્યું હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે। કંપનીઓ સિસ્ટમ ખામીના નામે માસૂમિયતનો નાટક કરે છે, પરંતુ હકીકતમાં આ સિસ્ટમેટિક લૂંટની ખુલ્લી ચીટિંગ સ્કીમ છે તેવા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે। ઉતરતા ટોલના બદલે સીધા આગળના ટોલનો ચાર્જ વસૂલવામાં આવતો હોવાની બૂમ ઉઠી છે। તો ગાડી ટોલમાંથી પસાર જ ન થાય તો પણ એકાઉન્ટમાંથી પૈસા કપાઈ જાય છે, તેમજ એક જ સફરમાં ડબલ ટોલ કપાતો હોવાનું રાવ ઉઠી છે। લોકોના આક્ષેપ છે કે મહિના 2 મહિના સુધી ઘરે પાર્ક કરેલી ગાડીઓના પણ ટોલ કપાઈ રહ્યા છે, ત્યારે રોડ પર ના નીકળેલી ગાડીનો ટોલ કોણે કાપ્યો, કોણ ખાઈ ગયું આ પૈસા તેવા સવાલો લોકોમાં ઉઠી રહ્યા છે। તો આ મામલે ટોલ પ્લાઝાના સ્ટાફે સ્વીકાર કર્યું છે કે ફરિયાદ કરનારને તો રિફંડ આપીએ છીએ, જે નહીં કરે એમના પૈસા ગયા ગણું। તો ફરજ પર હાજર મેનેજરને આ મામલે સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે ઘરે પડેલી ગાડીના પણ ટોલ કેમ કપાય છે, ત્યારે મેનેજર જવાબ આપવાના બદલે બેગ સમેટી જગ્યા છોડી ભાગી ગયો। આ મામલે જનતામાં આક્રોશ છે અને લૂંટ ચાલુ રાખવાની હિંમત છે, પરંતુ જનતા સામે ઊભા રહીને જવાબ આપવાની હિંમત નથી તેવા સવાલો જનતા કરી રહ્યા છે। હવે આ પ્લાઝા એક્સપ્રેસ વે નહીં, એક્સપ્રેસ લૂંટવે બની ગયો છે, ત્યારે ગયા 1 વર્ષમાં થયેલી તમામ ખોટી કપાતની સંપૂર્ણ તપાસ થાય, દરેક મુસાફરને ફરિયાદ વગર પણ આપોઆપ રિફંડ મળે, સિસ્ટમ સુધારી ફરી કદી આવી લૂંટ ન થાય તેની ખાતરી અપાય અને ભાગેલા મેનેજર અને ગેરજવાબદાર સ્ટાફ પર કડક ફોજદારી કાર્યવાહી થાય તેવી જનતાએ માંગ કરી છે। તો અહીંથી હું રાજલપુર ગયો ને તો મારા 570 કપાયા, એને આગળ વાસઠ મારા 580 કપાયા, પણ આ 7 તારીખ અહીંથી ગયો ઓલરેડી તો મારા 9 તારીખે 855 રૂપિયા કપાઈ ગયા। એ શાના કપાય એ મને ખબર નથી ઓલરેડી, પણ ત્યાં મને ફાસ્ટેગ ને એટલા બધા ના કપાવો છે, એટલે ઓલરેડી મારા 2 જગ્યા ટોલ ટેક્સ કપાઈ ગયો તો અહીંના 895 શાના કપાયા, મારે રિક્વેસ્ટ એટલા માટે છે બરાબર। આ કમ્પ્લેન નથી કરી, આજે હું કમ્પ્લેન કરું છું, એટલે મારા બી 1 વાર ઓલરેડી કપાયા છે, 5 ત્રીજી ચોથી વાર આવ્યો। કઈ ગાડી છે તમારી? મારી બી 10% જ છે। શું ઘટના બની હતી આ માતર ટોલ? સર અમે અહીં માતર થી ટોલ ટેક્સ થી એન્ટર થઈએ એટલે ફાઝલપુર નીકળીએ તો અહીંથી ફાઝલપુર નો ટોલ ટેક્સ 570 છે, તમારા 895 રૂપિયા કાપી લે। કઈ ગાડી છે તમારી? 10 ટાયર ટ્રક છે। કેટલી વાર આવું બન્યું? 3 વાર બન્યું સર। કમ્પ્લેન કરી હતી? કમ્પ્લેન કરી હતી કે અમે મહિના પછી 15 દિવસ પછી તમે કહીશું કે શું થયું, એવું કઈ કમ્પ્લેન जवाब नहीं आपका पर। सर ऐसा तो नहीं, कभी कभी एंट्री नहीं होती है तो एक्चुअली हो जाता होगा, लेकिन हम उसका 10 से 12 दिन हम उसका निदान करते हैं, जो कंप्लेंट आती है उनको निदान करते हैं, ऊपर फॉरवर्ड करते हैं सर उनको 10-33 पे ही कंप्लेंट करवाते हैं यूजर से हम, फिर नहीं होता हम अपने हिसाब से कंप्लेंट हमारे सीनियर को करते हैं, 10 से 12 दिन हम सर पैसा रिटर्न फास्टैग में हो जाते हैं सर। 10 बार लोगों का पैसा कटता है सर, घर पे गाड़ियां लोग 80-85 रुपए के लिए कितनी बार कंप्लेन करेंगे? वो सही है आपकी बात सर, लेकिन कभी कभी एंट्री अच्छा ये टेक्निकल खामी है सर, ये खामी टेक्निकल है, उसका जवाब दो। ये सर खामी कभी कभी एंट्री नहीं होती है, कभी नहीं, ये बहुत सारे ग्राहकों की ये टेक्निकली समझो आप। हाँ तो 1 साल से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, ये ऐसा सुनने में आया कि ये रुपया आप लोग लेते हो और इससे खाने पड़ रहे हो ना, ऐसा तो कुछ नहीं सर, हम तो आता है कोई मैसेज आता है हमारे पास तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। मैसेज आता है तभी आप जागते हो, मैसेज आता है कोई गाड़ी वाला कंप्लेन करेगा तभी आप जागते हो, उसके बाद आप देखते हो। वैसे कैसे पता लगेगा सर? सर 1 साल से यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बड़े गरीब लोग का पैसा सबसे ज्यादा यहाँ पे गया है, आपको मालूम है? सर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बरोबर ऊपर सीनियर को करते 10 से 12 सीनियर को फोन लगाओ, चलो आपके सीनियर को फोन लगाओ, इसलिए पूरे भारत में ऐसा कोई भी आप मैसेज दिखाओ ना सर, जब तो लगाऊं फोन में मैसेज दिखाओ। मैसेज में आपको बहुत सारे बताता हूँ, आप पहले फोन लगाओ, मैसेज में आपको बहुत सारे बताता हूँ। ऐसे फोन थोड़ी लगता है साहब, ऐसे फोन थोड़ी लगता है साहब, मैसेज में बता रहा हूँ आपको। आप मैसेज दिखाओ, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप मैसेज सीसीटीवी कैमरा चेक करो, चलो आप मैसेज दिखा दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ उनको 10-33 मैसेज दिखा दो, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये तो फिर रोज का लग गया, रोज लोग रोज का कुछ नहीं सर। આ ટોલ નાકા ઉપર જતી આવતી ગાડીઓના અવારનવાર આમને આમ જ ટેક્સ કપાઈ જાય છે। ટોલ ટેક્સ જે કપાય છે, ગાડી ઘરે પડી હોય તો કપાઈ જાય છે, ગાડી અહીંયા માટર ઉતરી હોય ને દેગામનો ટેક્સ કપાય છે। અવારનવાર આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ બને છે। આજે એના ફૂલ પ્રૂફ સાથે હું અહીંયા આવેલો છું। આ એક મારી પાસે સ્ટેટમેન્ટ છે ફાસ્ટેગનું, એની અંદર 8 થી 9 એન્ટ્રી એવી છે
કે જેમાં કોઈ ગાડી અહીંયા આવી નથી ને અહીંયા આવીને તે છતાં પણ આનો ટોલ ટેક્સ કપાયો છે ને અહીંયા કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ જવાબ દેવા પણ નથી આવી નથી. પાર્ટ ઇન્ડિયા નામની કંપની છે, જ્યારની એ કંપની આવી છે ત્યાંથી આવા ઘણા પ્રોબ્લેમ થાય છે ને કેટલાક લોકો તો એવા છે કે 80-90 રૂપિયા હારું અહીંયા આવી નહીં શકતા, એટલે કમ્પ્લેન પણ નથી કરતા. એવી તો કઈ કેટલી મેટરો હશે, પણ આજે આ એક જ મેટરમાં આ એક જ ગાડીમાં 8-10 વાર કપાયું એટલે અમે લઈને આવ્યા છે. બાકી એવી ઘણી બધી ગાડીઓ છે ને ઘણી બધી મેટરો એવી છે કે જે તો બોલવા પણ આવતા નથી ને અહીંયા આવે છે તો કમ્પ્લેન લેતા નથી, કોઈ કમ્પ્લેન બુક પર નથી અને કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ પણ નથી કે જેને આપણે કમ્પ્લેન કરી શકીએ. એક મેનેજર ભાઈ હતા કે ક્યારના જતા રહ્યા છે ને અમને 2 કલાકથી રાહ જોવાડે છે. આવું છે કોઈ રવિન્દ્રભાઈ કરીને છે, એમને કોલ કર્યો, એ એમ કે છે કે માણસ આવશે, એ માણસ હજુ આવ્યો નથી. આ કઈ જગ્યાની ઘટના છે? માટર ટોલ નાકાની. આવું કેટલાક લોકો સાથે થયું છે? આવું ઘણા બધા લોકો સાથે થયું છે, પણ અત્યારે અમે 4 છે. આ સમસ્યા કેટલા સમયથી છે? આ સમસ્યા પાટલી જ્યારથી આ કંપની આવી છે પાર્ટ ઇન્ડિયા ત્યારથી આ સમસ્યા ચાલુ થઈ છે. આવનાર સમયની અંદર શું થશે? મને હવે એમ કે છે આજે તો કે કોઈ બીજી નવી કંપનીએ હેન્ડઓવર કર્યું છે એ લોકોએ, હવે હું થાય છે તો હવે પછી જોઈશું. પણ અત્યારે જે આ કંપની અત્યારે ટોલ લઈને જતી રહી છે, હવે તો આ નવી આવશે તો એ ખબર નહીં હાથ મૂકે કે નહીં, કેમ કે આ મેટરો જૂની છે, હજુ હેન્ડઓવર કર્યું નથી ને એના મેનેજર અહીંયા જ છે ને એ ભાઈ કરજણ જતા રહ્યા છે એવું કે છે. આવે ને કહે ને મેટર હું જે એને બતાવીએ એ કમ્પ્લેન લે અને રિફંડ કરે એ જોવાનું છે. કેટલા સમયથી અહીંયા તમે મેનેજરને શોધી રહ્યા છો? લગભગ 3 કલાક થયા. શું જવાબ આપવામાં આવે છે તમને અહીંયા? એ ભાઈ એમ કે છે કે હું કરજણ જતો રહ્યો છું, મારા પર્સનલ કામ છે. મેં કીધું તમે ડ્યુટી પર છો કે હા હું ડ્યુટી પર છું, પણ એ ભાઈ એ આવવાનું ના પાડે છે અત્યારે. किसने भेजा? आपको किसने फोन करके यहाँ पे भेजा है? मेरे पास फोन आया था यहाँ से। हाँ, किसका फोन आया था? वो बताओ। अब ये मुझे नहीं पता किसी का फोन मेरे आपके पास साहब आया। का फोन आया था आपने? कौन से बोले साहब? यहाँ पे सब कंप्लेन करने आए हैं। नहीं, मेरे पास आपका फोन, आप में से किसी का फोन आया था तो मैं यहाँ पे यहीं पे था तो आ गया। कंप्लेन बॉक्स है यहाँ पे? कंप्लेन बॉक्स मेरा कल हैंडओवर हो चुका है। तो मेरा आप कल- साथ में कंप्लेन बॉक्स मेरा कल हैंडओवर हो चुका है सर। हैंड ओवर होता है तो आप कंप्लेन बॉक्स साथ में ले जाते हो। अब जो नया कंपनी आएगा वो नया कंप्लेन बॉक्स लेके आएगा, यस, यानी सब जो जूना लोगों का पैसा गया है वो लोग को पैसा आप देने वाले थे या ये जो नया? मेरे पास कंप्लेन आएगी, आगे भी मैं दूंगा। आप कंप्लेन बॉक्स ही ले गए हो, आप ही चले जाने वाले नहीं, हो मेरे इधर से। आप उसके 1 लिए महीना रुकोगे उसके बाद चले जाओगे। इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है। 1033 पे आप कंप्लेन लॉक करवाइए, आपका जो भी घंटे तक इशू, उसपे नंबर नहीं लगता जो है। भी सर इशू है वो एक आपका घंटे से- सॉर्ट अच्छा, आउट सुनो होगा। सर, मेरी बात सुनो। मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है, यस सर। उसका पैसा यहाँ से कटा, एक बार नहीं 5 बार कटा। 5 बार मैंने आके यहाँ पे कंप्लेन किया है, बराबर है, फिर भी पैसा नहीं आया है, तो अब क्या करो? कंप्लेन कहाँ किया सर आप? यहाँ पे ऑफिस पे आके नहीं, वो 1 नंबर के 2 नंबर सामने वाला। ऑफिस पे किया पहले। जब तक आप बोल रहे हैं कि मेरा पैसा कटा है, तो जब तक पैसा मैं चेक नहीं करूंगा तब तक पैसा रिफंड कैसे मैं यहाँ करूंगा पे सर किसी भी स्क्रीनशॉट चीज लेके के आया लिए? हूँ सर। ठीक है सर। पूरे पुरावे के साथ में आया हाँ, हूँ, ठीक है बराबर सर। फिर भी यहाँ पे बोलते हैं कि कंप्लेन कर दो हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। अच्छा सर मेरा तो छोड़ दो कि मेरा तो चल गया, जी। बराबर है। लेकिन जो आम आदमी है जिनको नॉलेज ही नहीं है ऑनलाइन, जो आप बता रहे हो 1033 नंबर पे, बराबर है, उन लोग का जो पैसा कटता है बिना फोकट का, जो गाड़ियां घर पे रहती है, बराबर है, जो यहाँ पे मातर उतरते हैं और भरूच का टोल टैक्स कटता है सर, आपके खाते में पैसा ज्यादा आता है, आप उन लोग को पैसा वापिस करते हो। 1033 पे कंप्लेन नहीं आता है तब तक आप उन लोग का पैसा वापस करते हो। खाली उसका जवाब दो, हाँ या ना में। कंप्लेन आप आए, पैसा वापिस कंप्लेन करते हो या आएगा हाँ या सर, ना में सर जवाब दो। कंप्लेन आएगा तो मैं रिफंड करूंगा बिल्कुल। अगर नहीं आएगा तो? कंप्लेन नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा? कि ये भाई है, ये भाई यहाँ से निकल गया, ये अभण आदमी है, जी। इसके अंदर कुछ ये साग भाजी रिंगन बटा के बेचता है, बराबर है, ये यहाँ से निकल गया, बेचारे का पैसा कट गया, बराबर है। 1033 पूरे एक्सप्रेस उसको वे नहीं पे, आता है, लेकिन पूरे एक्सप्रेस वो वे सब पे है बोले- सर, ओ सर, पूरे गुजरात एक्सप्रेस में वे सब पे है सर। एजुकेशन वाले नहीं है लोग, उसमें खुद आदिवासी भी और हमारे जैसे अभण लोग भी ऐसे, हमको नहीं आता है, तो आप मेरा पैसा किस तरह से रिफंड करोगे? रिफंड करेंगे, मेरे पास यहाँ पे कंप्लेन आएगी, जब तक नहीं कर, लेकिन कैसे कंप्लेन पता? नहीं आएगी तो आप रिफंड क्योंकि करो। मैं- मुझे इतना जवाब दो सर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी आदमी की कंप्लेन नहीं आती है, उसका पैसा कटा हुआ है जिन जिन लोगों का, उनको आप पैसा वापस दो। मैं पहली चीज तो मैनुअल ट्रांजैक्शन नहीं बनाता हूँ, सिस्टम ट्रांजैक्शन बनाता है, बैंक को जाता है सिस्टम
सिस्टम से ही, ठीक है, वही पैसा कटता है जो बैंक को जाता है, उससे अदर कोई पैसा नहीं कटता। अगर जो लोग की गाड़ियां घर पे पड़ी है उन लोग का पैसा कट गया और नहीं आया तो आप उन लोग को पैसा वापस देते हो या नहीं देते हो? पैसा मेरे पास जब तक कंप्लेन नहीं आएगी तो मैं कैसे करूंगा यानी सर? वो पैसा आप मेरे खा रहे हो, स्पष्ट लग ऐसा रहा होता है। नहीं है, और अगर हो रहा है तो मेरे अगर पास आप- कंप्लेन, तो फिर आप सीसीटीवी कैमरे में चेक करोगे कितनी गाड़ियां यहाँ से ऐसा आती हैं, होता जाती हैं। नहीं है सर, अगर हो रहा है तो मैं आपको 100 कंप्लेन रुपया आएंगी आदमी सर। से लेना है और आपके ट्रांजेक्शन में 1000 रुपया आ गया तो आपको चौंकाने वाली बात तो बनेगी ना कि साला मुझे 100 लेना था तो जो 900 रुपया आ गया 100 क्या लेना था? है तो 100 ही आएगा सर, 1000 नहीं तो आएगा। मेरा 85 रुपया जो गया है कल, हाँ। मैंने आपको अभी बताया जी। बराबर है, वो 85 रुपया आपने किधर डाला? आपके पैसे कटे हैं तो आप मुझे दिखाइए, मैं चेक करवाऊंगा। अभी बताया मैंने सिस्टम के थ्रू, आपके उपले सिस्टम अधिकारी को के भी मैंने बताया, उन सर, लोग ने सिस्टम के थ्रू मैं ऑनलाइन किया है। हाँ, मैं बराबर है, पहले उसको आप चेक करवाऊंगा। और क्या क्या है वो, हमको ऐसा गलत जवाब मत दो। गलत जो जवाब सही नहीं है दे वो रहा दो। हूँ, सही मैं है इतना बिल्कुल। बोलता हूँ कि जो ज्यादा पैसा आपके खाते में आया है, जिन लोग को आपने वापस नहीं दिया है, जिन लोगों ने कंप्लेन ही नहीं किया है, वो पैसे का आप क्या करते गलत पैसा नहीं कटता है सर। हो? मैं अभी बता रहा हूँ आपको, सर, अगर ये गलत पैसा सर, कटा है, गलत चलो पैसा नहीं CCTV कटा। कैमरा चेक करो, गलत आपने, पैसा चेक नहीं करते। आप मुझे भेजिए, मैं चेक करवाऊंगा ना सर, कैसे कटा पैसा वो। मेरी बात सुनो, मैंने अगर कब मना मैं- किया है? हाँ? अगर गलत पैसा कटा है तो मैं उसको रिफंड करने बैठा हूँ। पर मैं आता ही नहीं था, आप मुझे पैसा किस तरह से वापस करते? नहीं, पैसा जब आप पैसा मुझे गलत, इतना जवाब दो, मैं अगर इधर आता ही नहीं तो ये पैसा मुझे तो आप किस गलत तरह से पैसा कटा ही नहीं फिर आपका, हैं? फिर गलत पैसा कटा ही नहीं आपका। यानी कि जो आएगा उसका ही गलत गलत पैसा कटेगा। कंप्लेन यानी अब करेगा, आप पकड़ा गए हो यहाँ पे, या जो आएगा उसका ही पैसा गलत कंप्लेन है। आएगी तो बराबर, करूंगा ठीक है, सर। ठीक है, चलो। ભરત રાજપૂત સાથે જીતુ રાણા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, આમોદ, ભરૂચ।